Hello students, good morning. How are you all? So I hope you all are fine. And how's your going your study? Good or bad? Oh, very good. Okay, good. So let's start our today's lecture. The next sum is exercise 6.2 eighth sum. Find the values of x for which y is equals to in a bracket x minus 2 whole square is an increasing function. Okay students, so we have to find the values of x. That means we have to find that intervals. That means the values of x of intervals in which the given function is increasing function. So let's start. So answer here, y is equals to fx is equals to in a bracket x into bracket x minus 2 whole square be given function. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद थोड़ा इजी फॉर्म हम इसको क्रिएट करते हैं. लेट क्रिएट द इजी फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. सो वी गेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर. ओके, ओपन दिस ब्रैकेट. दैट मीन्स वी हैव टू sorry students, we have to open this square. So the answer is x raised to 4 minus 4x cube plus 4x square. Differentiate with respect to x, we get differentiating with respect to x, we get that implies f dash of x is equals to 4x cube minus 12x square plus 8x. Now for f is increasing or decreasing, take f dash of x is equals to 0. So that implies 4x cube minus 12x square plus 8x is equals to 0. Taking 4x as a common out, in a bracket x square minus 3x plus 2 is equals to 0. That means split this quadratic equation and find the values of x. That means 2 ones are 2 and 2 plus 1, that means 3. So we get और ये 4 को हम उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल के उधर साइड. सो फाइनल हमें क्या मिलेगा, x इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स वी हैव टू फोकस दिस एफ डेस ऑफ एक्स. मतलब हमें जो जितने भी इंटरवल्स हमें मिलेंगे उसमें हमें ये फॉर्म हमें क्रिएट करना है. सो देयर फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू 2. Okay, now plot these three values on number line. We get 0, 1, 2, 3 plus infinitive, minus 1, minus 2, minus infinitive, x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2. That means we have 4 intervals. The first one is x less than 0, that means minus infinity comma 0. Second one is 0 less than x less than 1, that means 0 comma 1. Third one, 1 less than x less than 2, that means 1 comma 2, and the last interval which is x greater than 2, so 2 comma infinitive. So let's check these 4 intervals for increasing or decreasing. The first interval is for x less than 0. हमें ये टर्म क्रिएट करना है. तो आप देख रहे हैं एक का आंसर तो आपको मिल ही गया कि x less than 0, x less than 0 and x less than 0. चलो एक आंसर हमें मिल गया. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करेंगे ऑन बोथ द साइड. सो x -1 लेस देन -1. -1 से x -1 का आंसर छोटा है, मतलब नेगेटिव साइड है, ऑब्वियसली 0 से छोटा ही होगा. सो x -1 लेस देन 0. यहाँ पे x लेस देन 0 है बराबर. अब हम क्या करेंगे, -2 करेंगे. सो x -2 लेस देन -2. -2 से छोटा है, इसका मतलब 0 से भी स्मॉलर नंबर ही होगा. सो x -2 लेस देन 0. This is negative, this is also negative, and this is negative. That means negative, negative, positive, positive, negative. Finally, we get negative. That means x into bracket x minus 1, x minus 2, which is obviously less than 0. So that implies f dash of x less than 0. Hence,
f is strictly decreasing in minus infinity comma 0. Now the next interval for 0 less than x less than 1. So the first is possibility is 0 less than x, so that implies x greater than 0. चलो एक का आंसर हमें मिल गया. अभी सेकंड पॉसिबिलिटी x less than 1, that implies क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग बाय माई 1 ऑन बोथ द साइड वी गेट x minus 1 less than 0. मतलब 0 से x minus 1 का आंसर छोटा आया. उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. x less than 1 टेकिंग -2 ऑन बोथ द साइड वी गेट x minus 2 less than 1 -2, दैट मीन्स -1 से छोटा नंबर है, दैट मीन्स 0 से भी छोटा ही होगा. सो x minus 2 विच इज लेस देन 0. सो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव आया, दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. Therefore x into bracket x minus 1 x minus 2 which is positive greater than 0. So therefore f dash of x which is greater than 0, hence f is strictly increasing in 0 comma 1. So the third interval for 1 लेस देन x लेस देन 2. तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम क्या लेंगे, 1 लेस देन x लेंगे, सो दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0. सो दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 0, 1 लेस देन x. अब हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो 0 लेस देन x minus 1, सो दैट इम्प्लाइज x minus 1 ग्रेटर देन 0. एंड द लास्ट वन x लेस देन 2, सो दैट इम्प्लाइज x minus 2 लेस देन 0. सो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट मीन्स बी नेगेटिव. सो देयरफॉर x इंटू ब्रैकेट x minus 1 एंड x minus 2 which is less than 0, so that implies f dash of x less than 0, hence f is strictly decreasing in 1 comma 2. And the lastly for x greater than 2 taking x greater than 2 3 times. यहाँ पे x greater than 2 है, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं which is greater than 0, so that implies x greater than 0. यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, x minus 1 greater than 2 minus 1, दैट मीन्स 1 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से भी बड़ा ही होगा. सो x minus 1 greater than 0 एंड फाइनली x minus 2 greater than 0. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव. सो देयरफॉर x minus 1 x minus 2 which is greater than 0. So that implies f dash of x greater than 0. Hence, f is strictly increasing in 2 comma infinitive. So हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि find the values of x for which f is increasing. That means therefore for 0 less than x less than 1 and x greater than 2 for the function f is an increasing function. समझ में आ गया? ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम. कौन सा वाला? एक्सरसाइज 6.2 का 8th सम. ओके, एक्सरसाइज 6.2 9th सम. प्रूव दैट y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in close 0 pi by 2.
सो आंसर यहाँ पे आपको थीटा में फंक्शन दिया है, हियर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, where theta belongs to close 0 comma pi by 2 be given function. Now differentiating with respect to theta, we get f of theta is equals to, here we apply our division rule in derivative. So denominator which is constant 2 plus cos theta and the derivative of numerator, that means 4 cos theta minus 4 sin theta which is constant, and the derivative of denominator, that means 2 plus cos theta which is 0 plus 0 minus theta. So here we write minus sin theta whole divided by 2 plus cos theta whole square, and this is minus the derivative of theta with respect to theta which is 1. So that implies f dash of theta is equals to, here 4 cos theta take into bracket, so we get 2 into 4 cos theta, that means 8 cos theta plus 4 cos square theta minus minus plus 4 sin square theta and whole divided by 2 plus cos theta होल स्क्वायर माइनस 1. सो ये पेज तो हमारा कंप्लीट हो गया. सो बुलाते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पेज को. सो हियर अ नेक्स्ट ब्लैंक पेज. चलो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बराबर. तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा 10th स्टैंडर्ड में आया है, बराबर ना. तो उसका आंसर हमें 1 मिलेगा. So that implies f dash of theta is equals to 8 cos theta plus 4 and divided by 2 plus cos theta whole square minus 1. Taking an LCM, we get 8 cos theta plus 4 and LCM लेने के बाद ये जो स्क्वायर है उसको ओपन भी कर देते हैं. So we get 4 plus 4 cos theta and plus cos square theta and whole divided by 2 plus cos theta whole square. So that implies f dash of theta is equals to, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 8 cos theta plus 4 minus 4 cos theta minus cos square theta and whole divided by 2 plus cos theta whole square. So that implies f dash of theta is equals to, plus 4 minus 4 cancel and 8 minus 4, that means we get 4 cos theta minus cos square theta whole divided by 2 plus cos theta whole square. इसमें से cos theta कॉमन आउट ले लेते हैं. So we get f dash of theta is equals to cos theta into bracket 4 minus cos theta and whole divided by 2 plus cos theta whole square. सो हमें जो फंक्शन क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ क्लोज 0 कॉमा पाई बाई 2, दिस वाला हमें क्रिएट करना है. सो लेट सी हियर फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 कॉमा पाई बाई 2. चलो तो आप देख सकते हैं डिनोमीटर वाला क्या है, तो स्क्वायर वाला है, बराबर. डिनोमीटर स्क्वायर है मतलब उसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. So 2 plus cos theta whole square which is greater than 0. That means ये जो भी उसका आंसर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा. मतलब 0 से बड़ा मतलब 0.5 हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 समथिंग. मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आपको मिल सकता है. ग्रेटर देन 0 है और स्क्वायर है इसलिए, समझ में आ रहा है. और मिनिमम नंबर आपको क्या मिलेगा, मिनिमम तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा. एंड 2 plus 1 दैट मीन्स 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9. मैक्सिमम 9 मिलेगा और मिनिमम cos पाई बाई 2 दैट मीन्स 0. सो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4. मतलब आपका जो भी आंसर होगा इसका, बराबर, ये इंटरवल में से आप थीटा की वैल्यू 1 by 1 पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा
ओके उसका रेंज क्या होगा? सो 4 से लेके 9 तक का आपको आंसर मिलेगा और 4 और 9 भी आपको कंपलसरी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्लोज है इसलिए। समझ में आ गया? सो ग्रेटर देन 0। अभी ये पॉजिटिव नंबर है, उसको हम 1 डिवाइड करेंगे, मतलब 1/1 करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/1.5 करेंगे, 1/0.5 करेंगे, या 1 कुछ भी कोई भी नंबर हम डिनोमीटर में लेंगे तो उसका आंसर आपको 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, बराबर ऑब्वियसली। तो वो क्या है? तो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 एंड हमें cos की रेंज पता है क्या है? तो 0 लेस और इक्वल्स टू cos थीटा एंड लेस और इक्वल्स टू 1। सो दैट इम्प्लाइज माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो द इनइक्वालिटी विल बी चेंज। सो 0 ग्रेटर इक्वल टू माइनस cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे? +1 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमें ये टर्म क्रिएट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे cos की रेंज का यूज किया। समझ में आ रहा है? सो अब हम क्या करेंगे? +4 करेंगे, 4 + 0 दैट मीन्स 4 ग्रेटर इक्वल टू 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू 4 - 1 दैट मीन्स 3। इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे, मतलब ऐसा है तो उसका घुमा देते हैं। सो 3 लेस और इक्वल्स टू 4 माइनस cos थीटा एंड लेस और इक्वल्स टू 4। सो आप देख सकते हैं ये जो न्यूमरेटर में ये जो टर्म है उसका आंसर हमें 3 और 4 के बीच में मिला, और 3 और 4 भी कंपलसरी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप cos थीटा के थीटा इज इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, 4 - 1 दैट मीन्स 3, और π/2 पुट करेंगे तो आपको cos π/2 दैट मीन्स ये आपको 0 मिलेगा, तो आपको फाइनल आंसर 4 मिलेगा। तो ये भी आपकी पॉसिबल हो गया। मतलब इसका जो भी आंसर होगा, मतलब ये इंटरवल में से आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0 और π/2 इंक्लूड करके, तो आपका आंसर 3 और 4 के बीच में और 3 और 4 भी मिलेगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? फाइनल कंक्लूजन हम ये लगा सकते हैं कि 4 माइनस cos थीटा का आंसर ग्रेटर देन 0 मिलेगा, बराबर ना, क्योंकि ये पॉजिटिव तो हमें मिलेगा, वो भी पता है, उसकी रेंज भी हमें पता है कि 0 और 4 के बीच में ही होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। सो cos थीटा का आंसर हमें क्या मिलेगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा बाई दिस वन। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर ही देता हूँ, दिख रहा है, बराबर ना। तो आप देख सकते हैं cos थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0। क्यों ग्रेटर इक्वल टू 0? क्योंकि आप थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 दैट्स मीन 0, मतलब एक पॉसिबिलिटी आपकी 0 तो आएगी और दूसरी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नंबर आएगी, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब cos थीटा इंटू ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0 मिलेगा, बराबर ना, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ये cos थीटा की वैल्यू हम π/2 यहाँ पे पुट करेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 - 0 दैट मीन्स 4। बट व्हाट अबाउट दिस टर्म? बिकॉज cos π/2 विच इज 0 एंड दिस 0 दैट मीन्स द होल टर्म होल नंबर इज 0, होल वेरिएबल इज 0। समझ में आ रहा? तो एक पॉसिबिलिटी 0 होगी और उससे बड़ा वाला नंबर हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सो cos थीटा इंटू ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा एंड होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ cos थीटा, क्योंकि ये cos थीटा ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है, मतलब 4 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो cos थीटा ग्रेटर इक्वल थीटा की वैल्यू π/2 पुट करेंगे तो ये π/2 0 हो जाएगा, मतलब ये सभी 0 हो जाएगा, तो एक पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है। सो दैट इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ थीटा विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0। हेंस क्या प्रूव करना था हमें? f इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0, π/2। समझ में आया? फॉर लिख देते हैं, फंक्शन फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0, π/2। सो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.2 का 9th सम, एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, बराबर ना। इजी है, इजी वे में आपको समझना है, एकदम शांति से एक बार देख लो। एक्सरसाइज 6.2 10th सम, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन is strictly increasing on 0, infinitive. Answer here, fx is equals to log x be given function. Differentiating with respect to x, we get what we get? We get f dash of x equals to 1 by x. Now here x belongs to open 0, infinitive. That implies x greater than 0. So that implies x की वैल्यू क्या है?
तो x बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी है। 0, इन्फिनिटी का मतलब x इज अ पॉजिटिव नंबर है, बराबर ना। 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब कि x ग्रेटर देन 0। अभी आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, तो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 समथिंग अप टू डॉट 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 है। अभी उसको हम 1 बाई 1 करेंगे, बराबर। मतलब डिनोमीटर में अगर हम उसको पुट करेंगे, मतलब 1/1 करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 करेंगे, या 1 कोई भी पॉजिटिव नंबर हम पुट करेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, बराबर ना। आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे 1/x करेंगे तो वो भी आंसर आपको ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। और 1/x का मीनिंग क्या है, तो विच इज एफ डेस ऑफ x ग्रेटर देन 0। और ये किसकी कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। हेंस f is strictly increasing in 0, infinitive। That's it। समझ में आ गया। देख लो एक बार। Exercise 6.2 11th sum, prove that the function fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1, 1। ओके, सो आपको रेंज तो दे दी है, -1 से लेके 1 तक की आपकी रेंज होगी। ओके, तो उसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो आंसर में हियर fx इज इक्वल्स टू x square minus x plus 1 be given function differentiating with respect to x, we get what we get f dash of x is equals to 2x minus 1। चलो, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, now for f is increasing or decreasing, take f dash of x is equals to 0, so that implies 2x minus 1 is equal to 0 and that implies x is equals to half। so हमें जो फोकस करना है वो हमारा फंक्शन कौन सा है, तो 2x minus 1 पर हमें फोकस करना है, और जितने भी इंटरवल्स हमें मिलेंगे उस इंटरवल में हमें ये फंक्शन क्रिएट करना है। सो अभी हमें रेंज तो दे दी है, बराबर ना। कौन सी रेंज है हमारे पास, एक ये -1 है और ये हमारे पास एक 1 है, और इसके बिटवीन ये हमारा 0, और हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू हाफ आया, तो हाफ हमें यहाँ पर मिलेगा। सो हमारा -1 लेस देन x लेस देन हाफ एंड हाफ लेस देन x लेस देन 1। सो -1, हाफ, अनदर इंटरवल हाफ, 1। चलो सबसे पहले हम पहले इंटरवल की बात कर लेते हैं। फॉर -1 लेस देन x लेस देन हाफ। चलो ये पेज भी हमारा खत्म हो गया। अभी हम दूसरे पेज को बुलाते हैं। तो ये पेज यहाँ पे साइड पर रखेंगे, ब्लैंक पेज। सो हम इसकी बात कर रहे थे, तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, सो x लेस देन हाफ लेंगे। दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लाई बाई 2, 2x लेस देन 1 एंड सब्सट्रैक्टिंग बाई 1, सो वी गेट 2x minus 1 लेस देन 0। दैट इम्प्लाइज f dash of x less than 0, hence f is strictly decreasing in किस में, तो -1, हाफ में। इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूँ। और अनदर इंटरवल दैट मीन्स फॉर हाफ लेस देन x लेस देन 1, तो उसमें मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, हाफ लेस देन x ले लेता हूँ। सो दैट इम्प्लाइज मल्टीप्लाइंग बाई 2, सो 1 लेस देन 2x सब्सट्रैक्टिंग बाई 1, 2x minus 1 0 less than 2x minus 1, so 2x minus 1 greater than 0, that implies f dash of x greater than 0, hence f is strictly increasing in हाफ, 1। और इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 दे देता हूँ। तो ये कैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ किया, वो तो आपके सामने प्रूफ है ही, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि हमने जो फर्स्ट इंटरवल था उसमें हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी है बराबर ना, मतलब x लेस देन हाफ, वो पॉसिबिलिटी से मैंने क्या प्रूफ किया, तो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ किया।
और जो दूसरा इंटरवल था उसमें मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी मतलब हाफ लेस देन एक्स, आई टेक हाफ लेस देन एक्स एंड आई प्रूव दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन हाफ कॉमा 1। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो हमें इंटरवल दिया था, कौन सा इंटरवल, -1, 1, तो उसमें नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग हमें प्रूव करना था, तो प्रूफ हो गया। क्योंकि हाँ -1 को हम स्प्लिट करके दो इंटरवल में हमने अभी डिवाइड किया था। कौन सा इंटरवल, फर्स्ट वाला था हमारा -1, हाफ एंड सेकंड वाला था हाफ, 1। सो एक इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया और एक इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया। इसका मतलब अभी हम दोनों इंटरवल को हम मर्ज कर देंगे और एक ही इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, तो एक ही इंटरवल मतलब फाइनल जो हमें इंटरवल मिलेगा -1, 1, तो उस इंटरवल में हम या कोई भी एक कंक्लूजन नहीं कर सकते, कोई भी एक फाइनल कंक्लूजन हम नहीं कर सकते कि ये इंटरवल में हमारा फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कोई एक आंसर हम फाइनल नहीं कर सकते हैं। फाइनल किस में हुआ, ये जो हमारा इंटरवल दिया था उसको हमने स्प्लिट करके दो सब इंटरवल में कन्वर्ट किया है। कौन सा वाला, तो फर्स्ट वाला था -1, हाफ था और सेकंड हाफ, 1 था। तो वो दोनों इंटरवल में इंडिविजुअली, एक में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, एक में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, वो हमने तो प्रूफ कर दिया। पर जैसे ही हमने दोनों इंटरवल को मर्ज करके हमने एक बड़ा इंटरवल, मतलब जो क्वेश्चन में हमें इंटरवल दिया था -1, 1, वो हमने जब लिया तो उसमें हम फाइनलाइज नहीं कर सकते। ऐसा सम हमने आगे देखा था f(x = sin x) के लिए और f(x = cos x) के लिए, बराबर, जिसमें हमने एक इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दोनों इंटरवल को मर्ज करके जो मेन इंटरवल बना था उसमें हमने नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग हमने प्रूफ किया था। सेम एज यहाँ पे भी ऐसा ही था। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we get f is NEITHER neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1, 1। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। सो इसका सॉल्यूशन एक बार शांति से आप कॉन्सेंट्रेट करके देख लो। ओके, समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज 6.2 19th सम, जो हमारा MCQ है बुक का। द इंटरवल इन विच y = x² e⁻x इज इंक्रीजिंग इज, मतलब हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस में 4 इंटरवल दिए, तो कौन से इंटरवल में हमारा जो फंक्शन दिया है वो इंक्रीजिंग हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे 4 जो ऑप्शंस है वो उसमें फर्स्ट है -∞, सेकंड है -2, 0, थर्ड है 2, एंड फोर्थ है हमारा 0, 2। तो सबसे पहले हम पहले इंटरवल की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की, तो -∞, है। इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा नंबर लाइन, बराबर ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हम f(x) = 0 लेंगे, बराबर ना। तो तब हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू तो हमें मिलेगी, कंपलसरी मिलेगी ही मिलेगी। तो वो जो भी x की वैल्यूज मिलेगी, बराबर ना, तो उसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो हमें इंटरवल भी मिलेंगे ऑब्वियसली। तो इंटरवल्स मिलेंगे, सपोज हमारे पास 2 इंटरवल्स होंगे तो एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरे में डिक्रीजिंग आएगा, बराबर ना। तो इन शॉर्ट कि ये जो हमारे पास इंटरवल दिया है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन इस इंटरवल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। कैसे वो हम आज अब देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर में हियर f(x = y = x² e⁻x be given function differentiating with respect to x, we get f(x) is equals to x² which is constant and the derivative of e⁻x which is e⁻x, and again the derivative of -x which is -1, and plus e⁻x which is constant and the derivative of e⁻x which is 2x. Now taking x and e⁻x as a common, and in a bracket the remaining term, here in a second term 2 is remain and in a first term -x is a remain. तो आप देख सकते हैं ये जो माइनस वाला था उसको मैंने बाद में लिखा और ये पॉजिटिव था उसको मैंने पहले लिखा, तो आपको ये फंक्शन आपको मिलेगा।
सो नाउ f dash of x is equals to 0. So that implies x e raised to minus x 2 minus x is equals to 0. So that implies x is equal to एक हमें वैल्यू 0 मिलेगी और x is equal to हमें 2 मिलेगा. तो आप देख सकते हैं कि x is equal to 2 हमारा आया है, बराबर ना. तो हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 0 1 2 -1 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. एक x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 0 था और x इज इक्वल टू 2 था, बराबर. तो हमारे पास इंटरवल क्या बनेंगे, सो x लेस देन 0, 0 लेस देन x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2. सो माइनस इन्फिनिटी कामा 0, 0 कामा 2 एंड 2 कामा इन्फिनिटी. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरवल्स भी मिले हैं, मतलब जो दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए. कौन कौन से, ए वाला और बी वाला, दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए. मतलब हमें चेक करना है सिर्फ ये दो इंटरवल में, हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन ये दो में से कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से फंक्शन में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो चेक करना है. तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे कौन सा इंटरवल, 2 कामा इन्फिनिटी वाला. 2 कामा इन्फिनिटी मतलब ये इंटरवल हम देख लेते हैं सबसे पहले, बराबर. जो हमारा सी वाला ऑप्शन है, मतलब सी फॉर एक्स ग्रेटर देन 2. चलो उसको हमें कौन सा टर्म लाना था वो हम देख लेते हैं. सो हमें जो फंक्शन लाना है वो हमें ये फंक्शन लाना है, बराबर. चलो तो x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 है, मतलब x 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही होगा. सो x ग्रेटर देन 0, एक का आंसर हमें मिल गया. अभी हम बात करते हैं e रेज टू माइनस एक्स की, जो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा. वो कैसे होगा मैं अभी आपको समझा देता हूँ, पर उसके पहले हम जो बाकी के है वो हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं. सो हमें क्रिएट करना है 2 माइनस एक्स क्रिएट करना है, बराबर ना. सो सबसे पहले x माइनस 2 हमें सब 2 माइनस एक्स क्रिएट करना है. सो अब हम क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट माइनस एक्स लेस देन माइनस 2. अब हम क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे. सो 2 माइनस एक्स लेस देन 0. सो आप देख सकते हैं इसका आंसर हमें नेगेटिव मिला. ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. अब ये पॉजिटिव कैसे वो मैं आपको बताता हूँ. हमारे पास ई की वैल्यू क्या है, सो 2.71 है, बराबर. स्मॉल ई की वैल्यू हमारे पास 2.71 है और ई रेज टू माइनस है ना, माइनस एक्स की वैल्यू हमें क्या लेना है, सर 2 से बड़ा लेना है, बराबर. 2 से बड़ा मतलब हम 3 ले सकते हैं, -3 करेंगे. सो 1/e³ मिलेगा. तो 1/e³. अभी ई का आंसर क्या है, तो 1/2.71 होल क्यूब. तो इसका आंसर हमें 2/3, मतलब 2/3 का आंसर हमें 8 मिल सकता है. तो 2.71 का आंसर समथिंग 10 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, बराबर ना, पॉजिटिव मिलेगा. तो 1 अपॉन पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स वी गेट फाइनली आंसर इज अ पॉजिटिव. मतलब जो भी आंसर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 0 से बड़ा नंबर होगा, बराबर. तो इसका आंसर हम ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है. कोई भी इंटरवल क्यों ना हो, कोई भी इंटरवल, फर्स्ट वाला हो, सेकंड वाला हो या थर्ड वाला, कोई भी इंटरवल आप लेंगे ना तो ई रेज टू माइनस एक्स का आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा. और कैसा आ रहा है तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि स्मॉल ई की वैल्यू हमारे पास 2.71 है और 2.71 का आप कोई भी पावर लेंगे, बराबर. 2.71 का आप कोई भी पावर लेंगे ना तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. और 1 अपन वो जो पॉजिटिव आंसर करेंगे ना तो आपको फाइनल आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा. और वो क्या है, तो 0 से बड़ा नंबर है. सो ये समझ में आ गया. ओके. चलो अभी ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव है. तो आपको पता ही है कि हमारे पास 3 फ्रेंड्स होंगे, तो 3 फ्रेंड्स में से अगर 2 पॉजिटिव बोल रहे हैं, बराबर ना, कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं, होगा, सब कुछ हो जाएगा, बराबर ना. पर एक बोलता है कि नहीं होगा नहीं होगा, मतलब एक नेगेटिव वाला हमारे पास एक फ्रेंड है. तो ऑब्वियसली हमारा जो भी एटमोसफियर होगा, पॉजिटिव एटमोसफियर होगा ना, वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा. हमारा एक फ्रेंड ऐसा होगा नेगेटिव वाला होगा तो हमारे सारे फ्रेंड्स के मूड आउट हो जाएंगे और जो भी एटमॉस्फेयर हमारा क्रिएट होगा वो नेगेटिव वाला ही क्रिएट होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा. क्या होगा, सो देयरफॉर x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट 2 माइनस एक्स विच इज लेस देन 0. सो दैट इम्प्लाइज f डैश ऑफ x विच इज लेस देन 0. हेंस f is strictly डिक्रीजिंग इन किस में, सो 2 कॉमा इन्फिनिटिव में. अभी हम डी की बात करेंगे. फॉर
कौन सा है हमारा डी वाला ऑप्शन 0,2 मतलब फॉर 0 लेस देन x लेस देन 2। चलो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है 0 लेस देन x है, दैट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 0। अभी ये ई रेज टू माइनस एक्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही होगा, वो तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एंड लास्ट वाला x लेस देन 2 दैट इम्प्लाइज माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस एक्स ग्रेटर देन -2। अभी हम क्या करेंगे +2 करेंगे, सो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दैट मीन्स हमारे तीनों के तीनों फ्रेंड्स पॉजिटिव है। सभी के विचार जो भी है वो सेम है, बराबर ना। एक बोल रहा है कि हो सकता है, दूसरा भी बोल रहा है हो सकता है, तीसरा भी बोल रहा है डबल हो सकता है, मतलब हो सकता है डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव। दैट मीन्स फाइनल आंसर therefore x e raised to minus x and 2 minus x which is obviously greater than 0, so that implies f dash of x which is greater than 0, hence f is strictly increasing in 0,2। तो हमारा आंसर हमारे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन किया था कि द इंटरवल इन विच y इज इंक्रीजिंग इज ऑप्शन क्या होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, मतलब सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर में हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर डी ऑप्शन कौन सा वाला है हमारे पास 0,2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप देख लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दिया था और 4 इंटरवल्स दिए थे। 4 इंटरवल में तो फर्स्ट इंटरवल तो हमने ऑब्वियसली पहले ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि हमारा फंक्शन जैसा भी था जैसा भी होगा हमारे पास x की वैल्यू ऑब्वियसली मिलेगी। सपोज मिनिमम 1 वैल्यू भी मिलेगी तो हमारे पास 2 इंटरवल होंगे, 2 इंटरवल दैट मीन्स एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग वाला होगा, बराबर। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उस फर्स्ट ऑप्शन में जो इंटरवल है वो इंटरवल को जो x की वैल्यू सपोज 1 मिलेगी तो ये फर्स्ट इंटरवल को हम 2 इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब कि ये पूरा इंटरवल होगा तो उसमें या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग दोनों में से कोई एक फाइनलाइज तो हम नहीं कर सकते, बराबर ना। मतलब ये इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग हो और या तो डिक्रीजिंग होगा, वो हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, मतलब ये फर्स्ट इंटरवल तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमारा फंक्शन से स्टार्ट किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमें आंसर x e रेज टू माइनस एक्स 2 माइनस एक्स समथिंग आंसर हमें मिला। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या थी, f टेस्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले ली फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमने लिया तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 0 मिली और एक x इज इक्वल टू 2 मिला, बराबर। और उसको नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हमें मिले। कौन कौन से इंटरवल, तो वो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटरवल x लेस देन 0 था, दूसरा 0 लेस देन x लेस देन 2 था और तीसरा x ग्रेटर देन 2 था। तो तीनों इंटरवल में से एक इंटरवल हमारे पास ऐसा था जो हमारे इंटरवल फाइंड आउट किया तो उसमें नहीं था, वो कौन सा था, बी वाला ऑप्शन। तो उसको हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक -2 था, -2 तो हमारे पास x की वैल्यू आई ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास +2 आया था ना। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा इंटरवल कैंसिल हो गया। कौन सा इंटरवल कैंसिल हो गया, बी वाला कैंसिल हो गया। अभी हम थर्ड पर गए, थर्ड के हम क्योंकि थर्ड वाला इंटरवल फोर्थ वाला इंटरवल हमने जो फाइंड आउट किया था उस इंटरवल में अवेलेबल था, इसलिए हमने ऑप्शन सी का स्टार्ट किया। तो ऑप्शन सी में हमने फाइंड आउट किया तो ई रेज टू माइनस एक्स ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि उसका आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो उसमें हमें आंसर क्या मिला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला। उसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। अभी हमारा फाइनल फुल एंड फाइनल ऑप्शन जो था वो हमारा था फोर्थ ऑप्शन, तो उसको हमने स्टार्टअप किया। तो स्टार्ट हमने उसको किया तो हमें क्या मिला आंसर, फाइनल आंसर जो हमने उसको हमारे रूल्स अप्लाई किए, इनइक्वालिटी के रूल अप्लाई किए, तो हमें फाइनल आंसर जो मिला वो क्या मिला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें मिला। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, मतलब लास्ट वाला जो डी वाला था वो हमारा ऑप्शन आंसर में आएगा। तो इस तरह हमने चेक करना था और इस तरह हमारा आएगा। और उससे पहले 6.2 का 11th किया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में -1,1 की बात की थी। तो x की वैल्यू जो हमें मिली वो हाफ मिली, बराबर। तो हाफ मिली तो वो इंटरवल को हमने 2 सब इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, -1,1 और 1,2,1 में। तो दोनों को चेक किया तो एक में इंक्रीजिंग और एक में डिक्रीजिंग आया। समझ में आ रहा है, एक में इंक्रीजिंग और एक में डिक्रीजिंग, मतलब कि -1,1 की बात करेंगे, मतलब फुल इंटरवल की बात करेंगे तो हम कोई एक कंक्लूजन फाइनल कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते कि या तो ये डिक्रीजिंग हो या तो इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो इस तरह हमने ये भी हमने
प्रूफ कर दिया, और उसके आगे हमने जो लॉगरिथमिक वाला फंक्शन था उसको भी हमने वो तो ईजी था क्योंकि 0, मतलब x बिलोंग्स टू आर प्लस हमें दिया था, x बिलोंग्स टू आर प्लस हमें क्वेश्चन में दिया था, तो उसके लिए हम बात करेंगे तो log x तो 1/x आएगा, एंड x बिलोंग्स टू 0, था, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 हो सकता है तो ऑब्वियसली 1/x वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, बराबर ना। कोई कंक्लूजन या कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है इसके बारे में, तो दैट मीन्स क्या होगा, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स विच इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनली एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, और इसके आगे भी हमने कितने, मतलब ये 10th वाला था ना, तो इसके आगे हमने 8th और 9th वाला सम भी देखा, बराबर ना। उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो एक्स की वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट की, और जो 9th था उसमें 0, में हमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हमारे आज हमने टोटल कितने सम्स किए, 5 सम्स हमने कंप्लीट किए, उसमें एक हमारा एमसीक्यू था। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तब हमारे नेक्स्ट सम से, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो भी हमारे नेक्स्ट सम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तब तक ये सब कंप्लीट कर देना, लिख लेना और समझते रहना, सीखते रहना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।